News coming in right now. Opposition escalates Ram Mandir attacks. Now, Congress Neta calls Ram Mandir Manuvad. India bloc ally says Mandir mental slavery. RJD Patna poster slams Ram Mandir. RJD poster says Mandir stands for superstition. Divisive politics that surges before temple unveiling. So, you see that poster on your television screens right now. An RJD poster which says that the Mandir, the Ram temple, the consecration ceremony for which will take place on January 22nd, stands for superstition, is what the RJD has said. Watch this report, which has been filed by my colleague Shashi Bhushan. नए साल का पहला दिन और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। ये 10 सर्कुलर रोड आवास है जहां पर लगातार पार्टी के नेता आ रहे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने। लेकिन लालू आवास के ठीक बाहर कई सारे पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों के बीच में एक पोस्टर जो है वो मंदिर और जो शिक्षा है उसको तुलनात्मक करते हुए एक पोस्टर लगा है। और इस पोस्टर में आप देखिए ऊपर लिखा गया है, पोस्टर में मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। तेजस्वी यादव की तस्वीर है और साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जो राबड़ी देवी है पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीर है। और खास बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सावित्रीबाई फूले की जयंती समारोह का आयोजन 7 जनवरी को किया जाना है, उसको लेके ये पोस्टर लगाया गया है। और कहीं ना कहीं 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बीच ये पोस्टर मंदिर को लेकर सवाल उठाता है और मानसिक गुलामी की तरफ इशारा करता है। और सबसे खास बात आपको दिखाते हैं, ये जो बड़ी तस्वीर इसमें लगी है, ये फतेह बहादुर सिंह हैं जो आरजेडी के विधायक हैं। सनातन को लेके अपने विवादित बयानों के कारण ये सुर्खियों में रहे हैं। हाल के दिनों में हिंदू देवी सरस्वती को लेकर इनकी टिप्पणी जो है वो सबने देखी और अब ये पोस्टर जो है वो लगा है। और पोस्टर के बीच कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है मंदिर की, उसको लेकर के आरजेडी अब हमलावर हो रही है। आरजेडी ने मंदिर को लेकर जो सियासत बीजेपी की तरफ से चल रही है उस पर तंज कसा है और सवाल उठाए हैं। और आरजेडी यह बता रही है कि मानसिक गुलामी का प्रतीक है मंदिर और जो शिक्षा है उसी के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। So the Mandir stands for mental slavery is what that RJD poster says on your screens. Let's listen in to what the Congress, an ally of the RJD, has to say. राम को मानने वाली बीजेपी वीएचपी ही है और दूसरे नहीं है। हम तो दूसरों को बुला करके उनको भक्त बना रहे, ये क्या मतलब है? मजाक है, कितना भद्दा मजाक है। राजनीति से सुपर राजनीति कर रहे हैं कि हम सबको बुला रहे हैं, आश्चर्य होता है। So that, of course, is what the Congress now has to say. So amid the surge of faith and fervor, an ugly political clash that refuses to subside. In the latest, VHP Working President Alok Kumar on Sunday rubbished the opposition's claim of politics over sending out invitations for the mega Ram temple consecration ceremony on January 22nd. Kumar said that the inauguration of Ram temple in Ayodhya is a program for the entire country and everyone's welcome. The leader of the opposition in Kerala, V.D. Sathisan, on Sunday criticized the CPM for what he termed the party's attempts to politicize the Ayodhya temple consecration ceremony, saying that only a few Congress leaders have been invited. Remember, earlier Karnataka Minister D. Sudhakar had called the Ayodhya Ram temple consecration ceremony a vote-catching exercise by the Modi government, comparing it with the Pulwama terror attacks ahead of the 2019 Lok Sabha polls. So, several opposition leaders, they are alleging that the BJP is politicizing the inauguration of the Ram temple in Ayodhya. Karnataka Chief Minister, though, Siddaramaiah, on Sunday said that his government and his party are in full support of the Ram Mandir. അത് ജനുവരി 22 നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വിവാദമാക്കുകയാണ്. ഈ സിപിഎം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക.
വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വരുന്ന സമയത്തും പാലസ്തീൻ വിഷയം വന്ന സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഈ അയോധ്യ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും CPM അതിനെ പൊളിറ്റിക്കലൈസ് ചെയ്യുക, BJP ചെയ്യുന്ന അതേ പണി ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് സമൂഹത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪರನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ. लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए. आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है. कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं, और विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बनी बनाई सरकारों को गिराया है. ये तो सत्यानाश ही है. ये निगेटिव एनर्जी है. लोकतंत्र में निगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, आलोचना की गुंजाइश है, एक स्वस्थ आलोचना. लेकिन ये तो नकारात्मक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं. कुछ जो राम का विरोध करे वो नास्तिक. राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं. खड़गे जी के पास तो मैं स्वयं गया था, अधीर रंजन चौधरी जी के पास भी विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के लोग गए थे. नृपेन जी ने जाकर के सोनिया जी को निमंत्रण दिया है. हमने विपक्ष के नेता को जब निमंत्रण दिया तो प्रधानमंत्री को देने में क्या आपत्ति है? अगर राजनीति होती तो विपक्ष के नेता को क्यों देते? हमने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को भी दिया है. अगर राजनीति करनी होती तो उनको क्यों देते? और मैंने ये बार बार कहा है, अगर वो आएंगे तो हम सम्मान से उनको स्थान देंगे, उनका स्वागत करेंगे. हमने बाकी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स को भी बुलाया है. ये कार्यक्रम पूरे देश का है, सबका स्वागत है. आप एक जगह पे राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो, हाँ, और दूसरी तरफ आपके चुनाव क्षेत्र वाराणसी में 3 हमारी सीता मैया का वस्त्रहरण जिसने किया वो आपके खास लोग, आपके साथ हमने आपके फोटो देखे हैं. उससे पता चलता है कि बीजेपी का जो IT सेल है उसका कैरेक्टर क्या है. जो हम सबको पूरे विपक्ष को बदनाम करने के लिए जो IT सेल का इस्तेमाल होता है ना, उसमें किस दिमाग वाले लोग बैठे हैं, उनका चरित्र और चारित्र क्या है. हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी. सर, आज आपने एक ट्वीट किया है कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक्स पर लिखा कि शूद्रों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना, और जब हमने उस मुद्दे को उठाया और भी मीडिया के लोगों ने तो ट्वीट डिलीट कर दिया और भाग गए. तो क्या है, प्रधानमंत्री जी निषाद के घर जाते हैं, यानी केवट के घर जाते हैं, एक लोअर कास्ट के घर जाते हैं, उसको डिग्निफाई करते हैं. तो ये क्या है, पुरानी जाति व्यवस्था लौट रही है. धोबी केवट, धोबी के कहने से किया और बानरों ने उनका सहयोग दिया, केवट ने नाव पार कराया. क्या इंगित क्या करता है आखिर में? अब तो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, सभी को खुशी है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो. पूरे देश का पैसा लग रहा है, जो टैक्स पेयर्स का ही तो पैसा होता है. एयरपोर्ट इतना डेवलप हो रहा है, स्टेशन है, अच्छी बात है. लेकिन जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कि केवट के घर गए, निषाद के घर गए, तो इससे क्या हम अनुमान लगाएं, क्या वही व्यवस्था वापस लाना चाह रहे हैं? लेकिन वो लोग तो लाभार्थी भी हैं, की सरकार की स्कीम्स है, कोई दिक्कत नहीं. लाभार्थी देखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं. प्रधानमंत्री हमेशा से बोल सकते. अरे भाई, आप ये बताइए, कई दिनों से चल रहा, सुनते सुनते कान फटने लगे. निषाद के घर गए, निषाद के घर गए, तब आप लोगों ने नहीं बोला. तब तो एक केवट के घर गए, लाभार्थी के घर कहाँ गए? अब बात बदल रहे हैं. जो अंदर है
अंदर की जो चीज निकल के बाहर आई, अब मुकर रहे हैं उससे। ये प्रधानमंत्री तो हमेशा ये बात बोलते रहे हैं कि वो सिर्फ 4 जातियों में विश्वास रखते हैं, महिला, किसान, युवा और फिर क्यों निषाद परिवार है, बीजेपी के तमाम लाखों करोड़ों लोगों के हैंडल पर है, मीडिया में है, कई दिनों से है। तब क्यों नहीं ये बात उठी कि 4 ही जाति है और निषाद जाति है ही नहीं है।